Namo Vishnu Vishnu Pristaya Bhutale Vimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Vimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Bhattakalishadaruni Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
हरे कृष्णा। तो हम सर्वप्रथम हिज ग्रेस श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु, प्रेसिडेंट ऑफ पल्लव विद्यानगर, प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर, हमारे सीनियर गुरु भाई भी हैं और हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिनसे हम जपा के विषय में काफ़ी अच्छे से श्रवण किए हैं, 2 रिट्रीट, और काफ़ी अच्छे प्रभु जी सेमिनार देते हैं। तो हमारे बीच प्रभु जी उपस्थित है, तो इन्हें 3 बार हम जोर से 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का स्वागत करते हैं। पहली बार हमारे इस सत्संग ग्रुप में प्रभु जी आ रहे हैं। मैंने ऐसे बोला था उनको कि आप ठाणे आना है, पर लॉकडाउन के कारण हो नहीं सका। झूम के जरिए क्यों ना हो, प्रभु जी उपस्थित है और आप बिल्कुल 2-1.5 घंटे के लिए एकदम स्थिर मन से बैठ जाइए। इतना कुछ अनमोल रत्न हरिनाम के प्रति आपको मिलने वाला है। तो ऐसे प्रभु जी का हम 3 बार जोर से स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु की। तो प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रभु जी कृष्ण भावना में लंदन से जुड़े, लंदन में प्रभु जी पोस्ट मास्टर थे और उनको लंदन लादर स्ट्रीट पर एक बुक मिला, चैतन्य चरितामृत, और उसे पढ़कर प्रभु जी कृष्ण भावना में आए। और चैंटिंग के बारे में जब पता चला तो उन्होंने क्विकली 16 राउंड चैंट शुरू कर दिया। फिर बाद में हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज से उनका इंट्रोडक्स हुआ। स्पिरिचुअल मास्टर मीट ही स्पिरिचुअल मास्टर लोकनाथ स्वामी महाराज। अपॉन हिज इंस्ट्रक्शन ही मूव्ड टू गुजरात। महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप गुजरात जाइए। इंडियन प्रीचिंग मिशन एंड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ। Initially he was handling the Sankirtan party in Vadodara, Gujarat, and various service in Centennial। महाराज का सेंटिनियल प्रोग्राम था प्रभुपाद जी का 1996 में, उसमें काफ़ी प्रभु जी ने is appointed he as the temple president of ISKCON Vallabh Vidyanagar, Sri Radha Giridhari in 1977। प्रभु जी keep service was in fund rising upon the instruction of spiritual master। He has done various research in this field and introduced many schemes and idea which guaranteed a lot of funds on successful implementation। Prabhuji has also trained many temples in fundraising program। Prabhuji played a major role in the construction of ISKCON Arwade, was president of short time till the inauguration। He was also the president of ISKCON Noida and successfully implemented the project which was delaying since years। Now he is appointed as the president of ISKCON Nagpur along with ISKCON Vallabh Vidyanagar। Prabhuji is expert speaker on the subject matter of Anartha chanting and his inspiration of Srila Bhaktivinoda Thakur। He takes the shiksha from various Prabhupada's disciples, His Holiness Shivaram Maharaj, His Holiness Sachidananda Maharaj, His Great Gurijan Prabhu, His Great Jagat Tirtha Rani Mataji, His Grace Srimati Mataji, and many more। He is also blessed by the mercy and highly respected by many Vaishnavas, Gujarat, Giraj Govardhan, Vrajavasis and Giraj Govardhan, Vrindakund, Nandagram and Radhakund। His lecture is highly powerful and empowering for a serious practitioner in Krishna consciousness। He regularly attend a Japa Govardhan retreat conducted by VIC Vrindavan Institute। On getting inspiration with the retreats, Prabhuji has personally conducted many retreats which have come very famous, and most of the devotees across various parts of India have got benefited a lot of their chanting and have made a spiritual progress। Prabhuji has introduced many tips from the scriptures and acharyas on how to chant japa more effectively and efficiently। Although the residing the Grahastha ashram, Prabhuji perfectly setting example on how to implement Krishna consciousness principle in our life। Hare Krishna। तो प्रभु जी बहुत हम्बल भी है और काफ़ी अच्छे मार्गदर्शक है। प्रभु जी का साधना इतना पावरफुल है कि केवल गृहस्थास नहीं तो बहुत सारे ब्रह्मचारीज और सीनियर्स डिवोटीज ISKCON के बहुत अट्रैक्टिव है प्रभु जी के। और प्रभु जी का बिहेवियर बोले तैसा चाले तैसी वंदा भी पावले मराठी में कहते हैं। तो प्रभु जी एज एग्जाम्पल गृहस्थ है, लेकिन उनके ब्रह्मचारी कई सारे शिक्षा काउंसिलीज हैं, जैसे मैं तो
बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। प्रभु जी भजन और भोजन दोनों में फेमस है। भोजन भी मतलब प्रसाद खिलाने में भी काफ़ी एक्सपर्ट है गुजराती होने के नाते। आप जब रिट्रीट आएंगे तो आपको प्रभु जी बुलाते हैं कि आपके ग्रुप को भी रिट्रीट लेके आओ। तो अगली बार जब होगा तो हमारा ग्रुप भी आएगा, तब आप प्रभु जी का दोनों चीज़ें रियली खुद प्रेजेंटली आप रिलीज करेंगे कि प्रसाद भी और उनका साधना के बारे में, हरिनाम के प्रति उनकी रुचि, दोनों रुचि। ओके, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, प्रभु जी को निवेदन करता हूँ कि आप अपना सेशन स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। और आप सभी का भी धन्यवाद, आप सब ज्वाइन हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया हरि नाम के बारे में बताने के लिए आपको। तो सबसे पहले जो हम जप करते हैं उसमें पूर्व तैयारी जरूरी है। जैसे प्लेन उड़ाते हैं तो प्लेन उड़ाने के पहले उसको तैयार किया जाता है और उसी के बाद ही प्लेन को सिग्नल दिया जाता है, फिर वो रनवे पे जाके स्पीड बढ़ा के फिर ऊपर उड़ता है। तो जब में भी कुछ पूर्व तैयारी है, उसके कुछ पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जल्दी उठ के जप करना चाहिए और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो हमारा लाइफ साइकिल है उसको ऐसा सेट करना चाहिए कि हम हमारी जो माला है, 16 माला या जो भी संख्या आप करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में हो। ये भगवान भी सिखाते हैं द्वारका में भी, सुबह उठ के कैसे वो करना। तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें हमें कंसंट्रेशन अच्छा होता है और रिजल्ट जल्दी मिलता है। तो धीरे धीरे हमारा लाइफ साइकिल ऐसे बनाना चाहिए कि हम जितनी हो सके उतनी माला सुबह ही कर ले, विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज अमेरिका में भी है जो सुबह 2 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं, अपना भागवतम रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच प्रिपेयर करते हैं, ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, फिर 1.5-2 घंटा ड्राइव करके जॉब पे चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कुछ भक्त हैं जो हर पूर्णिमा को अमेरिका से फ्लाई करते हैं और गिरिराज की परिक्रमा लगा के वापस चले जाते हैं, कई सालों से करते हैं। तो डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए राइज अर्ली एंड चैंट अटेंटिवली। सेकंड पॉइंट है हेल्दी बॉडी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य शरीर का ठीक होना चाहिए, उसके बाद में साधना सही होना चाहिए और उसके बाद में सेवा कृष्ण भावना भावित होगा। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो साधना में कंसंट्रेशन नहीं होता है और हम थोड़ा माला बैठ के करते हैं, फिर थोड़ा माला चल के करते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं, किसी से बात करने चालू हो जाते हैं, या हम माला चालू रखते हैं और कुछ और देखने, विंडो के बाहर देखते हैं कि बंदर आ गया है पेड़ पे, क्या कर रहा है, विक्षेप होता है। वास्तव में 16 माला एक सेशन में एक आसन में हो, ऐसा सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। और बाद में जब माला बढ़ती है तो महाप्रभु कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को निर्बंध, निर्बंध का मतलब है 64 माला एक आसन में एक समय में। तो 64 तो दूर की बात है, पहले हम 16 का अभ्यास करें। तो इसके लिए शरीर का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में 4 स्तंभ बताए हैं। आहार, आहार सात्विक होना चाहिए, और निद्रा, अच्छा नींद आना चाहिए। अच्छा नींद नहीं आएगा तो फिर जप में नींद आएगा, भागवतम क्लास में नींद आएगा। और व्यायाम, एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, सब मसल एक्टिव रहते हैं, नहीं तो धीरे धीरे सब शीतल हो जाता है।
विशेष करके 50 साल के बाद जो है वो अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर शरीर साथ देना कम करता है, और 60 के बाद और तकलीफ होता है, और 70 के बाद तो बहुत दर्द होता है। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें पता लगेगा। तो इसलिए हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है। रात को लाइट खाना है ताकि सुबह आसानी से पेट साफ हो जाए। अगर पेट साफ नहीं होगा तो ध्यान लगाने में बहुत कठिन होगा और बीच में भजन भंग होगा। इसलिए जरूरी है कि दोपहर का जो भोजन है वो आप फुल मात्रा में ले लीजिए, और शाम का अल्प आहार, अगर ऐसा हो सकता है तो। कभी कभी कुछ लोग बहुत ऐसा मेहनत वाला काम करते हैं तो फिर उनको थोड़ा ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो शाम को ज़्यादा खाएंगे फिर नींद भी ज़्यादा आएगी, सुबह उठने में भी दिक्कत होगी, और भारी पेट अगर साफ नहीं होगा तो फिर कंसंट्रेशन से जप नहीं होगा। ये सब आयुर्वेदिक और योगिक चीज़ें हैं जो हमें भी अप्लाई करती है, क्योंकि हमें भी शरीर और मन इसको लगाना है, तभी तो अच्छा जप होगा। फिर हमें जब हम सो जाते हैं तो सोने के पहले या तो हम थोड़ा चैंटिंग कर ले 1-2 माला और सो जाए तुरंत, या तो हम कुछ जप के बारे में पढ़े, या तो हम जप के बारे में कोई लेक्चर सुने और वो सो जाए। क्योंकि जिस चीज को लेकर हम सो जाते हैं तो वही चीज सुबह उठ के मन में चलेगी। जैसे आप कभी ट्राई कर लेना कि आपको अनुभव हो सकता है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है शाम के समय में सोने के पहले, तो फिर सुबह जब जप में आप जप करने चालू करते हैं तो झगड़े की बात बार बार पूरी 16 माला में आती रहेगी, 2 घंटा तक वो चलेगी। ऐसा बहुत भक्तों ने अनुभव किया है। जो भी चीज आप लेके सो जाते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। भगवान कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। तो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है उससे हमें सावधान रहना है, ताकि हम लोग का मन ऐसा दूषित ना हो जिससे दूसरे दिन का जप हमारा बिगड़े नहीं। इसलिए सोने के समय चैंटिंग के बारे में कुछ पढ़ना या सुनना, या 1-2 माला करना और सो जाना, तो फिर सुबह जप अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे हमें इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल और बुरा संग कम करते जाना है, अगर जप में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। अगर हम हमेशा टीवी, न्यूज़पेपर ये देखेंगे तो फिर मन में वही बात चलेगी कि लद्दाख पे, ये बॉर्डर पे टेंशन है, कब युद्ध होगा। अभी आज इंडिया में 60,000 केस बढ़ गए, और कोरोना, अच्छा महाराष्ट्र में कोरोना इतना बढ़ रहा है, गुजरात में इतना बढ़ रहा है। यही सब बात ज्यादा हम लोग अपलोड करेंगे तो वही घूमती रहेगी। इसलिए अल्प मात्रता में इन चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य, हम आत्मा है और हमारा मुख्य लक्ष्य मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक होना चाहिए। तो इन चीजों को कम करना चाहिए, विशेष करके बुरा संग। और सत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, महाप्रभु कहते हैं। बुरा संग इतना खतरनाक है कि हमें कैसे प्रभावित कर देता है वो हमें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब उसका नतीजा होगा तब एहसास होगा। बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसलिए बुरे संग से धीरे धीरे बचना जरूरी है। फिर जब भी हम किसी को मिले तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए, फालतू भौतिक बातें, विशेष करके भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए। ये पहला अपराध है, नाम अपराध।
भक्तों के बारे में बोलना, ये ऐसा है, वो वैसा है, आज की ताजा खबर पता चला, इसका पतन हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। हम कृष्ण कथा करने आए हैं या भौतिक कथा बढ़ाने के लिए आए हैं? तो ये निंदा आदि से क्या होता है, हमारा जो मन है वो नाम में लगेगा नहीं, भक्ति लुप्त हो जाएगी, वो ऐसे ही ऊपरी ऊपरी चलते रहेगा, लेकिन उसमें ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्तों का निंदा और प्रजल्प से बचे। फिर धीरे धीरे हमें मेहनत करनी है, जो सद विपु है, जो 6 शत्रु है हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारे मन में बैठे हुए हैं, उनसे बचने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। हमें इसके लिए अलग अलग शास्त्रों को पढ़ना है। जैसे भागवत में विशेष कथा दी है काम वासना को बचने के लिए, जैसे पुरंजन की कथा है, महाराज ययाति की कथा है, ऐल गीत में महाराज पुरुरुवा की कथा है, अजामिल की कथा है, इस प्रकार से पिंगला वेश्या की कथा है। ये सब कथा बार बार पढ़ के उसमें से जो शिक्षाएं हैं, और भगवत गीता में काम वासना से बचने की जो शिक्षाएं हैं, इनको जीवन में उतारना है। तो उसका अलग पूरा स्पेशल कोर्स होता है, सेमिनार होता है, वो भी धीरे धीरे उसको लगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इसको कम करना पड़ेगा। अगर ये रहेगा तो क्या करेगा, ये वायरस है। जैसे अभी सोचो किसी के अंदर कोरोना वायरस घुस गया तो बेचारा पूरा उसका हालत खराब हो जाता है, उसका सब शक्ति नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये 6 वायरस जब हमारे अंदर घुसते हैं तो हमारी जो भक्ति है उसको डिलीट कर देते हैं। इसलिए ये सब चीज से बचना बहुत जरूरी है। फिर झगड़े से बचना चाहिए। झगड़े से कभी कभी इंटरनेट पे कुछ झगड़ा होता है कि नहीं? अगर हमारा मन उसमें लग जाता है फिर जप के समय वो चलता है। इसलिए समस्याओं का समाधान करना, मतभेद है कुछ भक्तों के बीच में कुछ मुद्दे पर, उसका समाधान करना, प्लानिंग करना कि आज हम ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, ये सब जप के समय नहीं होना चाहिए। नो प्लानिंग, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग जपा। ये एक डिसिप्लिन माइंड को ट्रेन करना है कि जो प्रॉब्लम है हम बाद में सॉल्व करेंगे, जप के समय शट अप। नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, नो प्लानिंग, वी कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट लेट्स चैंट, देन वी विल डू। क्योंकि चैंटिंग क्या है, भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, लाइव अपॉइंटमेंट है। नाम नामिनो अभिनतवान, कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतार। नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण आपके पास आए हैं और आप फिर दूसरी चीज में ध्यान लगा रहे, तो कृष्ण को कैसे लगेगा? तो इसीलिए आपको ये समस्याओं को और ये सब जो है जप के समय ये सब एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे भक्तों के प्रति और साधु संतों के प्रति आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उनकी सेवा करके, उनसे श्रवण करके, उनके बारे में उनका महात्म्य सुन के, शास्त्र से भक्तों का और साधु संतों का महात्म्य सुन के उनके प्रति आसक्ति बढ़ाना जरूरी है, तभी हमारा प्रगति हो सकता है। अगर हम साधु संत के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हैं तो हम एकदम लो लेवल, कनिष्ठ लेवल पे हमारी पूरी जिंदगी चले जाएगी। मध्यम लेवल पे आत्मबुद्धि, ममता बुद्धि, ईज्य बुद्धि प्रकार के भाव, ये भक्त मेरे जैसा ही है, ये भक्त मेरा भक्त है, अपनापन, ये भक्त पूजनीय है, ये भक्त साक्षात तीर्थ समान है,
इस प्रकार का भाव मध्यम अधिकारी का होता है। तो इसलिए भक्तों के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो हम हमेशा एकदम प्राइमरी लेवल भक्ति में रहेंगे और सेकेंडरी लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आसक्ति उनका महात्म्य सुन के, उनकी सेवा करके और उनसे श्रवण करके आसक्ति बढ़ानी चाहिए। इससे हमें बहुत मदद होगी हमारे जप में। और भगवान को जब हम देखते हैं मंदिर में, जैसे आप बंबई में है तो राधा रास बिहारी या मीरा रोड राधा गिरिधारी, इस प्रकार से जब आप भगवान के समक्ष जाते हैं तो बड़े सेवा भाव और भक्ति से भगवान का दर्शन करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही एक पुतले की तरह भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। हमें देखना चाहिए कि कितना हमारा सौभाग्य है कि भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हमारे सामने खड़े हैं। राधा रास बिहारी कितने मुस्कुरा रहे हैं और हमको देख रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पे कर रहे हैं। भगवान हमें आपकी सेवा में लगाओ, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और प्रार्थना भी है भगवान का दर्शन करने के लिए, जैसे ओ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट मर्सीफुल श्री श्री राधा रास बिहारी, today I place myself with all my possessions at your lotus feet, please engage me in your service। इस प्रकार से प्रार्थना होना चाहिए भगवान के सामने, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो ये कुछ तैयारी है, ऐसा करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे हमारे जप में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी हम कुछ नाम महात्म्य पढ़ेंगे, जो हम सचिनंदन महाराज की पुस्तक है नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, उससे पढ़ेंगे नाम महात्म्य। वेदांत सूत्र में कहा गया है ओम अनावृति शब्दार्थ। जो भौतिक ध्वनि होती है उससे भौतिक बंधन होता है। जब भी हम सुनते हैं कोरोना, तो कोरोना सुनने से हमारा भौतिक विस्तार होता है, हमारी बुद्धि भौतिक ग्रस्त हो जाती है कि कोरोना होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल का 1 लाख रुपया है, हमारा भौतिक रूप से ग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आध्यात्मिक ध्वनि होती है अनावृति, तो आवरण जो हम पे लगे हुए हैं, माया के आवरण लगे हुए हैं, वो निकल जाएंगे। समझ रहे? इसलिए ओम अनावृति शब्दार्थ, ओम हरे कृष्ण महामंत्र, ये जब हम सुनते हैं ध्यान से तो क्या होता है, हमारे ऊपर जो भौतिक आवरण लगा है वो निकल जाते हैं धीरे 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 धीरे। वो इंटेंसिटी कितनी तीव्रता से आप और कितनी शुद्धता से, कितनी ईमानदारी से और कितनी गंभीरता से आप श्रवण कीर्तन करते हैं हरि नाम का, उस पे आधारित रहता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। तो ये एक श्लोक है। फिर दूसरा श्लोक है गरुड़ पुराण से है, यद इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाद यद परमम पदम तद आदरेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। हे राजाओं में श्रेष्ठ, अगर आपको सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना है जिससे आप परम धाम प्राप्त कर सकते हैं, तो श्रद्धा के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ गोविंद का कीर्तन कीजिए, हरि नाम का कीर्तन कीजिए। इसके बाद में श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में बताया है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुना
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि मेरे प्रिय राजा, कलयुग हम देख रहे हैं ना, हम कलयुग का पूरा अनुभव कर रहे हैं, हाँ, कि कितनी टूटियों से भरा हुआ है। लेकिन एक अच्छा गुण है कलयुग का, इसलिए देवता लोग भी चाहते हैं कि कलयुग में उनको जन्म मिल जाए और 100 साल में तो उनका भगवत धाम प्राप्ति हो जाए। देवता भी चाहते हैं। तो और विशेष करके ये कलयुग, क्योंकि 1000 कलयुग, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता और 1000 द्वापर के बाद जब 999 कलयुग चले जाते हैं, तो 1000 कलयुग में एक बार उस कलयुग में साक्षात चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो उन्नत उज्ज्वल रस सबसे ऊंचा भक्ति है, माधुर्य भक्ति, राधा कृष्ण प्रेम भक्ति, वो बहुत आसानी से प्रदान करते हैं। तो हम लोग का कितना सौभाग्य है, हम ऐसे कलयुग में हैं। तो यहाँ बताया है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम सब प्राप्त हो जाएगा उसको। तो हाउ इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ये हरिनाम चैंटिंग। उस समय हरिनाम के समय ये नहीं होना चाहिए कि अभी दूध वाला आ रहा है, अभी न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, अभी घंटी बजी, अभी टिंग मोबाइल में बजा, किसका एसएमएस आया। नहीं, हरिनाम के समय पूरा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो हरिनाम दे सकता है वो मोबाइल नहीं दे सकता है, वो आपका नौकरी नहीं दे सकता है, वो परिवार नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। जो भगवान दे सकते हैं वो और कोई दे ही नहीं सकता है, और भगवान हरिनाम के रूप में आए। तो इतना हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा अवसर मिला है हरिनाम करने के लिए। फिर बृहद नारदीय पुराण में 3:8-126 में बताया, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कर्म योग से, ज्ञान योग से, अष्टांग योग से सिद्धि नहीं होगा, केवल हरिनाम से होगा। तो सरल लोगों के लिए सरल है और टेढ़े मेढ़े लोगों के लिए सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये सब कठिन परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। हरिनाम का विज्ञान और उसकी जो साधना की प्रणाली है उसको सीखिए। इससे जो लाभ मिलेगा वो जो करोड़ों जन्म में नहीं मिलता है, वो इस कलयुग में होते हुए भी एक प्रभुपाद जी के हिसाब से आफ्टर 35 years यू कैन चैंट परफेक्टली। 35 साल में सिद्धि हो जाती थी। सतयुग में ऋषि मुनि 60,000 साल, 1,00,000 साल तप करते थे, तब सिद्धि होती थी। इस युग में अगर ईमानदारी से, गंभीरता से, सही मार्गदर्शन में हम हरिनाम का आश्रय लेंगे तो 35, 40, 50 साल में तो प्रभुपाद जी बोले हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। फिर चैतन्य चरितामृता में आदि लीला 17:22 में बताया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निस्तार। तो कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे बाबा सब मंदिर में दूध पी रहे, गणपति दूध पी रहे और शिव जी दूध पी रहे, सब लोग जाते हैं दूध पीने के लिए कि भगवान अवतार आ गए कि नहीं। और जब हम बोलते हैं कि कली काले नाम रूपे अवतार, तो लोग लगते हैं अरे नाम में कहाँ है, कभी दिखता नहीं, कुछ अनुभव नहीं होता है। वो इसलिए अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम बिना अपराध जप नहीं कर रहे। अगर हम अपराध से बचकर जप करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि नाम ही कृष्ण है। ये साक्षात्कार तभी हो सकता है जब हम 10 अपराध से
मुक्त हो जाते हैं। इसलिए 10 अपराध से मुक्त होने के लिए उसके हमने एक प्रार्थना का शीट भी आप लोगों को भेजा है, उसको हर रोज पढ़ना है जब के पहले, और सतर्क रहना है कि हम सबसे पहले तो अपराध कम कर दें और धीरे धीरे जीरो कर दें। जब तक हमारे अपराध जीरो नहीं होंगे तो हम ये साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण ही और कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। ये साक्षात्कार तब होगा जब आपके अपराध जीरो हो जाए। फिर आगे आदि लीला चैतन्य चरितामृत 7.74 में बताया है, नाम बीनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, ये शास्त्र का मर्म है। सर्व मंत्र सार नाम ये शास्त्र मर्म। कली काल में हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना सबसे ऊंचा धर्म है, क्योंकि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कौन देता है? भगवान देते हैं। तो महाप्रभु आके स्वयं धर्म दिए हैं इस युग का, वो है हरिनाम। इसलिए हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहिए। महात्म्य सुन के बार बार हरिनाम सेमिनार्स, रिट्रीट्स, वर्कशॉप्स, हरिनाम बुक्स, हरिनाम लेक्चर्स, ये सुन सुन के हरिनाम की आसक्ति होनी चाहिए। अगर आसक्ति नहीं है तो सब फ्लॉप शो है। तो ये बढ़ाने के लिए ऐसा अभ्यास करना जरूरी है। फिर कली संतरण उपनिषद में बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नत परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि जो ब्रह्मा जी है, उनके पास, ब्रह्मा जी के पास 4 सिर है, 8 आंखें है। तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो 99% बुद्धि तत्व का बना है। हमारा जो शरीर है वो जल तत्व ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी सारे वेदों को, कितने श्लोक हो गए, हम अभी तक प्रभुपाद जी की सारी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी सारे वेदों को 3 बार पढ़ लिए और ये निष्कर्ष पे आए कि सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देख लिया, इसमें सर्वश्रेष्ठ उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र। ये 16 शब्द वाला जो मंत्र है इतना पावरफुल है कि कलयुग का जो कल्मश है सब नाश कर दे। तो इसको याद रखना चाहिए कि हम क्या चैंट कर रहे हैं और उससे क्या लाभ मिलेगा, है कि नहीं। और फिर लास्ट महात्म्य हम पढ़ेंगे, वो आदि पुराण से है, 104 108 आदि पुराण से है। ना नाम सदृशम ज्ञानम, ना नाम सदृशम व्रतम, ना नाम सदृशम ध्यानम, ना नाम सदृशम फलम, ना नाम सदृश त्यागो, ना नाम सदृश समा, ना नाम सदृशम पुण्यम, ना नाम सदृशी गति। नामेव परम मुक्ति, नामेव परम गति, नामेव परम शांति, नामेव परम स्थिति, नामेव परम भक्ति, नामेव परम मति, नामेव परम प्रीति, नामेव परम स्मृति, नामेव कारणम जंतोर, नामेव प्रभुरेव च, नामेव परमाराध्यम, नामेव परमो गुरु। हरिनाम जैसा कोई व्रत नहीं है, हरिनाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान उसके पास नहीं आता है, और सबसे ऊंचा फल हरिनाम देते हैं। कोई तप नहीं है हरिनाम के समान, या कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है हरिनाम के समान। सबसे ऊंचा पुण्य कार्य है और परम आश्रय है। वेद भी
वेदों के पास भी शब्द नहीं है हरिनाम का गुणगान करने के लिए। हरिनाम का जो कीर्तन है वो सबसे ऊंचा मार्ग मुक्ति का है, शांति का है, नित्य जीवन का है, भक्ति की परिकाष्ठा है, हृदय का आनंद है और सबसे परम आकर्षक और भगवान का स्मरण करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हरिनाम जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं, उनके स्वामी और गुरु के रूप में और आराध्य उनके गाइड के रूप में। तो इस प्रकार से हर रोज हम हरिनाम महात्म्य भी पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो आसक्ति है और रुचि है हरिनाम के प्रति, और जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वो सुबह जूम पे जपा भी करते हैं, तो महाराज के साथ जप भी कर सकते हैं 1 घंटा। उसके बाद महाराज भी हरिनाम के बारे में हर रोज कुछ बताते हैं और बाद में उसका एक ट्रांसलेशन किया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में भी। अगर आप अपना आईडी दे देंगे तो आपको भेजेंगे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हरिनाम के बारे में जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपकी आसक्ति बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि महात्म्य पढ़ने से हमारा रुचि और आसक्ति बढ़ता है। तो हमेशा भक्तों का महात्म्य, भागवत का महात्म्य, नाम का महात्म्य, भगवान के विग्रह का महात्म्य पढ़ने से हमारा भाव सही हो जाता है। अब जब हम जप करने बैठते हैं तो उसके पहले ये 4 चीज याद रखना है। ये सूत्र है जप करने का। सबसे पहले कि हम कौन है, इसको कहते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, कि मैं एक अनुआत्मा चेतन तत्व का भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। मैं एक अनुआत्मा चेतन तत्व का भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। ये पहला सूत्र ध्यान करना है। दूसरा है कि ईमानदारी से जो आप हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं वो ध्यान से सुनिए, वो ध्यान से सुनिए। स्पष्ट उच्चारण और स्पष्ट पूरा श्रवण ये होना चाहिए। जस्ट ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली, ये प्रभुपाद जी का सूत्र है। ठीक है। अगर मन चला जाता है किसी और बात में तो उसको खींच के वापस चैंटिंग में लाइए, सुनने में लगाइए उसको। तीसरा सूत्र है भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना है। शुद्ध भक्ति। अगर हम मूल में पानी डालेंगे तो सब पूरा पेड़ को लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारा हर प्रकार से कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमें बीच बीच में ये याद करना है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना है। और लास्ट में उत्साह बनाए रखना है। कभी शारीरिक समस्या के वजह से, कभी मानसिक तनाव की वजह से, कभी समस्याओं की वजह से, कभी वातावरण की वजह से, कभी आसपास के रिश्तेदार लोगों से उत्साह भस्म होते रहता है। हमें वापस उत्साह बनाना है। तो हर माला के लिए उत्साह होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि लोगों को 2-3 पहले बहुत उत्साह से सब बैठ जाते हैं जप करने के लिए। 2-3 माला ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। 2-3 माला में तो कितने फ्लैट हो जाते हैं, वो उत्साह भस्मीभूत हो जाते हैं। कुछ लोग तो सो ही जाते हैं, फिर वो बहुत संघर्ष करके माला खत्म करते हैं। कुछ लोग तो मैदान छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना तो हम बैठ नहीं पाएंगे अभी बहुत, इसलिए फिर वो घूम फिर के चल के कैसे भी
दिन में अभी 2 माला किया, दोपहर में 2 माला किया, ऐसे करके वो माला खत्म कर लेते। माला खत्म करने के लिए नहीं है, भजन करने के लिए है कि नहीं? खत्म करने वाला जो भाव है वही बेकार है। तो ऐसे भाव से जप नहीं होता है। तो ये 4 सूत्र को जप के समय याद रखना है, ठीक है। अभी जो है हम हरिनाम चिंतामणि से पढ़ेंगे, जो उसका 12वां अध्याय है हरिनाम चिंतामणि में। ये हरिनाम चिंतामणि पुस्तक लाना सब भक्तों के लिए जरूरी है जिनको भजन में आगे बढ़ना है। ये लाइफ लॉन्ग मैन्युअल है हमारे लिए और इसको नियमित पढ़ना जरूरी है। तो ये जो 12वां अध्याय है उसमें ध्यान पूर्वक जप करना, उसके बारे में बताया है। तो उसके श्लोक हम पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन। 16 श्लोक है इसमें 12 अध्याय में। तो आपको हरिनाम चिंतामणि लाना आवश्यक है। अमेज़न से आपको मिल जाएगा। सर्वसाक्षी प्रभु का एक अच्छा हिंदी में होता है, उसमें श्लोक भी होते हैं और ऐसे बहुत सारे दूसरे भक्तों का है, भानु महाराज का है, ऐसे भी है। तो आप हरिनाम चिंतामणि जरूर लाइए। पहला श्लोक श्रीला हरिदास ठाकुर समझाते हैं। ओ चैतन्य महाप्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को जगन्नाथपुरी में समझाया और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में समझाया कि हरि नाम ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान से नाम लेना चाहिए। बेध्यान से जप करना नाम अपराध है। व्यक्ति अगर सारे दूसरे अपराध से बचता है लेकिन उसके अंदर भाव नहीं आता है शुद्ध नाम के प्रति, तो ये प्रमाद जो है, प्रमाद माने पागलपन, माने हम नाम बोल रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं बोल रहे, या नाम बोलने के समय हम लैपटॉप में लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए। तो इस प्रकार से जो नाम लेंगे तो भक्ति की जो लता है वो बढ़ेगी नहीं। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं कि बेध्यान और लापरवाही का तालमेल है। लापरवाही और बेध्यान का तालमेल है। लापरवाही से हरि नाम लेते हैं तो क्या होता है, हम अनर्थ के बीज बो रहे हैं, हमें अनर्थ को निकालना है। लेकिन जब हम बेध्यान से या लापरवाही से हरि नाम लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अनर्थ के बीज बो रहे जो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। बेध्यान 3 प्रकार का है। पहले को कहते हैं औदसिन्य, जिसमें हुआ तो हुआ, ना हुआ तो ना हुआ, इस प्रकार का भाव रहता है, माला कैसे भी खत्म कर लेना है और दृढ़ संकल्प नहीं रहता है साधना में। दूसरे प्रकार का बेध्यान जड्य माने आलस, माने हम माला को घड़ी घड़ी थैली में से निकाल के देखते हैं कि अभी कितना खत्म हुआ, आधा खत्म हुआ या 25% खत्म हुआ, अरे अभी तो पूरी माला बाकी है, अरे यार हिली नहीं रही है। या फिर हम सो जाते हैं, झोंके खाते रहते हैं, फिर उठते हैं, झोंके खाते हैं। ये दोनों प्रकार की आलस है। हमें इतना रुचि होना चाहिए कि 16 माला हो गई हमें पता भी नहीं लगना चाहिए और 32 हो जानी चाहिए। इसको कहते हैं नाम भजन। तो आलस और उत्साह में आसमान जमीन का फर्क है। तो ये आलस भी अपराध है, नाम अपराध है, बेध्यान। तीसरा प्रकार का बेध्यान है, उसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का मतलब है जो साधना भक्ति से जो कोई लेना देना नहीं है उसमें ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे जप के समय ऐसे हो कि अरे ये कोरोना कब बंद होगा, धंधा कब बढ़ेगा, इकोनॉमी कब बढ़ेगा। अरे भजन के समय इकोनॉमी को छोड़ो, बाद में इकोनॉमी को देखना। इस प्रकार से ध्यान अलग अलग लग जाता है। कभी
मोबाइल में ध्यान लगता है, मोबाइल में देख रहे कि भाई ईमेल कौन सा आया, ये आया वो आया। कभी ध्यान बाहर मर्सिडीज गाड़ी पड़ी है उसमें लग जाता है कि अरे यार हमारे टू व्हीलर है, मर्सिडीज कब आएगी, हरि नाम ले रहे आना चाहिए। इस प्रकार से विक्षेप होता रहता है। हरि नाम में आकर्षण नहीं, लेकिन वो आकर्षण भ्रष्ट होकर भौतिक चीज में आकर्षण उत्पन्न होता है। तीसरा श्लोक में बताया है, अगर किसी का बहुत अच्छा भाग्य है तो उसके अंदर हरि नाम का आश्रय लेने का श्रद्धा उत्पन्न होता है। नियमित रूप से नाम संख्या पूर्वक लेने से, ध्यान से, हाँ, और स्पेशल केयर के साथ वो धीरे धीरे अनुराग के स्थल पे पहुंचते हैं, जहां उनको हरि नाम के प्रति बिल्कुल आकर्षण होता है। अनुराग का मतलब है, अगर कोई बोलता है हरि तो तुरंत हमको लगता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम, चालू हो जाते। स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्वाभाविक आकर्षण। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे गोविंद, जैसे एक युवक का या एक युवती का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, ऐसा मेरा आकर्षण आपके प्रति कब उदित होगा। तो ऐसा हरि नाम पर स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, देखते ही मग्न हो जाना, बहुत ही भाग्य से ऐसा अवस्था व्यक्ति पहुंचता है। तुलसी माला पे जप करना चाहिए और धीरे धीरे समय के साथ जप क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़ाना चाहिए। पहले क्वालिटी में, बाद में क्वांटिटी में। अनुराग पहुंचने के पहले उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए ये सब अपराध के बारे में। चौथे श्लोक में बताते हैं कि स्वाभाविक रूप से लोग भौतिक चीज से आसक्त होते हैं। वो हमेशा भौतिक प्रकृति में स्मरण उनका बना रहता है। एक बाजू व्यक्ति नाम लेता है, लेकिन उसका मन और ध्यान नाम से बहुत दूर रहता है। अगर वो 1,00,000 नाम भी जप कर लेता है, उसका मतलब 64 माला, उसको एक बूंद भी स्वाद, हरि नाम का जो प्रति स्वाद है, वो आस्वादन नहीं होता है। ये बेध्यान जप है और उसका फल है। ऐसे भौतिकवादी का हृदय को अपराध से रोकना बहुत कठिन है। 5वां श्लोक, व्यक्ति को नियम बनाना चाहिए कि हर रोज 1 घंटा एक संत, उच्च कोटि का वैष्णव के साथ एकांत में जप करना चाहिए। जो मैंने बोला, एक अभी बहुत हमारा शुभ अवस्था है, हम महाराज के साथ जूम पे जप कर सकते हैं। हमारे घर में एकांत में है और हमारे सामने जूम आईडी महाराज है, उसमें हम महाराज के साथ जप कर लेते हैं। और वहां उसको देखना है कि ये संत कैसे जप करता है, कितने ध्यान पूर्वक जप करते हैं, कितने मग्न है, कितना नाम रुचि है, और ऐसा मेरे अंदर कैसे आएगा। इच्छा, नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको भवनाम यो विददाति कामान। जब भगवान देखेंगे कि हम ऐसा रुचि चाहते हैं नाम के लिए, तब तो हमारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं है तो भगवान पूरा क्या करेंगे। तो हमारा नाम के प्रति इच्छा होना चाहिए। संत महात्माओं के संगति में ऐसी इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न होगी। तो ऐसा उनके साथ जप करना चाहिए। हर रोज नहीं समय मिलता है, जब भी मौका मिले ऐसा अवसर का लाभ लेना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा करने से उसका मन और ध्यान हरि नाम में स्थिर हो जाएगा। नित्य हरि नाम लेने से व्यक्ति वो अमृत को आस्वादन करने की तृष्णा, लालसा बढ़ती जाएगी। उसको तुलसी के पास बैठना अच्छा लगेगा या कृष्ण की लीला स्थली में बैठना अच्छा लगेगा, और संत महात्माओं का संग बहुत अच्छा लगेगा, और उनसे सीखने को बहुत अच्छा लगेगा कि इनका आचरण ऐसा है, मुझे भी ऐसा आचरण बनाना है, मुझे भी एक असली मनुष्य बनना है, एक इंसान बनना है,
एक संत बनना है, ब्राह्मण बनना है, एक वैष्णव बनना है, एक शुद्ध भक्त बनना है, भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान का पार्षद बनना है। इच्छा, एलिवेशन होना चाहिए धीरे धीरे। ऐसी संग, जैसा संग वैसा रंग। संग का मतलब है प्रभाव। अगर हम भौतिक लोगों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, अरे तुम्हारा ये एप्पल 11 फोन है, अरे मेरा, मुझे भी ऐसा चाहिए, तुम्हारा ये गाड़ी है, मुझे भी ऐसा गाड़ी चाहिए, हम प्रभावित होते। संत महात्माओं के पास प्रभावित नहीं होते, ये अच्छी अवस्था नहीं, ये तो उल्टी अवस्था है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार से। तो इसलिए नियमित संग होना चाहिए उच्च कोटि भक्तों का, और उनके आचरण से प्रभावित होकर हमें उनसे सीखना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति 1 घंटा भजन करता है, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर हर रोज वो 3 लाख नाम जप करता है, 192 राउंड्स, और भौतिकता से वो पूरा मुक्त हो जाता है। फिर 6ठा श्लोक में बताते हैं कि दूसरा तरीका है कि एक बंद कमरे में बैठ जाओ। जैसे संत लोग, जैसे सनातन गोस्वामी उस समय में 500 साल पूर्व 20 फुट जमीन में गुफा बनाए थे और वहां जाके जप करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का इतना मोटा दरवाजा वाला एक कमरा बनाया था ताकि कोई उस बाहर से आवाज ना आए, साउंड प्रूफ रूम, उसमें बैठ के जप करते थे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा स्ट्रेटेजी बताते हैं कि मस्तक पे चादर डाल दो, क्योंकि मन भटकता है। भटकने का मुख्य कारण नेत्र है, आंखें। जो हम देखते हैं वहां मन भटक जाता है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है कि आंख के ऊपर, लेकिन सोना नहीं चाहिए, फिर चादर डाल के सो नहीं जाना है, जागरूक रहना है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है ताकि पूरा हरि नाम में 100% फोकस और ध्यान हो जाए। फिर 7वें श्लोक में हरिदास ठाकुर समझाते हैं कि अगर हम आलस में लिप्त होते हैं तो हरि नाम आस्वादन नहीं होता है। वो हरि नाम चालू करता है, लेकिन बहुत जल्दी लगता है कि अरे ये तो बहुत लोडिंग हो रहा है, और उसको सोने की इच्छा होने चालू हो जाती है, धीरे धीरे निद्रा में चला जाता है। उन्नत भक्त बहुत सतर्क रहते हैं इस अपराध से। वो एक क्षण भी फालतू बातें में या फालतू क्रिया में वेस्ट नहीं करते हैं और हमेशा हरिनाम पे ध्यान करते हैं। वो हरिनाम के अमृत में इतने मग्न हैं कि उनको दूसरे किसी चीज की परवाह नहीं है। ऐसे महान संत जो है वो हमेशा भक्ति सेवाओं में लगे रहते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, समय को बिगाड़ते नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समुद्र की लहर आपके लिए रुकेगी नहीं, आपको पटक देगी। इसी प्रकार से समय किसी की राह नहीं देखता है। आपका 1 साल चला गया, ये 3-4 महीना कोरोना खा गया, अभी वो वापस नहीं आ सकता है। 3-4 महीना वो गया जिंदगी में से। इसी प्रकार से जितना समय हम वेस्ट करते हैं वो हम खड्डे में डाल दिए उसको, वो समय गया। अगर ऐसा व्यक्ति वैष्णवों का संग करता है और अपने आप को पूछता है कि मैं भी इस प्रकार से कैसे जप कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे उसका उत्साह बढ़ेगा और भगवान उनको मदद करेंगे, और फिर वो धीरे धीरे ये आलस से मुक्त हो सकता है। संग ही उपाय है हर अपराध के लिए। फिर 8वां में बताते हैं विक्षेप के बारे में। जप कीर्तन में विक्षेप से मोह उत्पन्न होता है, जिससे बहुत गंभीर अपराध होते हैं हरि नाम के प्रति, और उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। इस मोह से व्यक्ति को धन,
स्त्री या पुरुष पदवी, सफलता और कपट में आकर्षण बढ़ने लगता है। जब ऐसे आकर्षण हृदय को आवृत करते हैं तो उस कनिष्ठ को हरिनाम में रुचि भस्मीभूत हो जाती है। इसलिए विक्षेप सबसे खतरनाक है। औदसीन्य और जड़ीय जो है वो भी है, लेकिन सबसे खतरनाक विक्षेप है। उसका उपाय बताया है 9वें श्लोक में। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए ऐसे विचार को निकाल देने का मन से और वैष्णव सदाचार का पालन करना। अगर ऐसे गंदे गंदे विचार आते हैं तो उसको ब्रेक मारना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं मन की 3 क्रियाएं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, महसूस करना, चाहना। सोचने के पता लगते ही ब्रेक मार देना चाहिए। अगर महसूस करने में हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए और भगवान के प्राकट्य दिन, जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, और दूसरे उत्सवों में बहुत उत्साह से पूरा रात दिन साधु संत, उन्नत साधु संतों की संगति में कीर्तन और भक्ति दिन रात करना चाहिए। विशेष करके अगर धाम में हो जाए, नवद्वीप, वृंदावन, पुरी, तो और भी अच्छा है, ऐसे महात्माओं से जो रूप गोस्वामी की लाइन में आ रहे हैं। और शास्त्रों की चर्चा, जैसे भगवद गीता, भागवत और दूसरे वैष्णव शास्त्र, तो पूरे हृदय से ऐसे उत्सवों में वो जाएंगे। ऐसा ही समय होता है रिट्रीट्स में, सेमिनार्स में, ऐसा वातावरण बनता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो आकर्षण, रुचि जो हरिनाम के प्रति जो भस्मीभूत हो गया है, वो जागृत हो जाता है। और ये तुच्छ विषय वासना कबे तुच्छ होवे, जो विषयों की वासना है वो तुच्छ लगने लगती है। जब अज्ञानता होता है तो हम गलत करते हैं, जब ज्ञान आता है तो गलत हम बंद कर देते हैं। लेकिन तो ऐसा होगा अगर हम उत्साह से पूरा समय, ज्यादा समय निकालें जब ऐसा विक्षेप का समस्या है। तो जब हम परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हम ऊंचा स्वाद आस्वादन करेंगे तो क्या होगा कि जो नीचा स्वाद है वो स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। भगवान के मधुर मधुर कीर्तन भजन में भक्तों जो गाते हैं उसके कान अमृत से भर जाएंगे। उसका मन प्रकृति में जो जकड़ा हुआ है तो जकड़न खत्म हो जाएगी और भगवान की लीलाएं और भगवान का नाम में मग्न हो जाएगा। उसका मन भगवान के नाम पे स्थिर हो जाएगा और फिर प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न मन, प्रसन्न चित्त के साथ वो हरिनाम ले सकते हैं। 11वां श्लोक। व्यक्ति को जो संकल्प लिया है, 16 माला, जो भी 20 माला, 25 माला, 4 माला, 8 माला, जो भी संकल्प लिया है वो ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ, उत्साह के साथ पालन करना चाहिए। और देखना चाहिए कि हम क्वालिटी हमारा जप का अच्छा है कि नहीं। इसके लिए हम असेसमेंट भी कर सकते हैं, वो आगे के रिट्रीट में आपको हम बताएंगे। जैसे हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं कि हमारी पहले 4 माला A ग्रेड की हुई, B ग्रेड की हुई, C ग्रेड हुई, वो हम नेक्स्ट रिट्रीट में बताएंगे। ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है और क्वालिटी पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब तक क्वालिटी नहीं है तो बढ़ाने का, जल्दी जल्दी बढ़ाना नहीं चाहिए। पहले क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फिर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, फिर क्वालिटी और बढ़ाओ, फिर थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से जा सकते हैं। और व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए कि वो विक्षेप में ग्रस्त ना हो जाए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं कभी विक्षेप में और ये तीनों प्रकार के बेध्यान में ग्रस्त ना हो जाऊं, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, व्यक्ति को एकांत में, जब उसमें ऐसा सब होता है ध्यान, बेध्यान, तो एकांत में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। मुख्य अभ्यास भक्तों की संगति में करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अभ्यास एकांत में भी करना चाहिए, जिसमें ध्यान से नाम पे पूरा लग सके।
स्पष्ट रूप से पूरा मंत्र हरे कृष्णा उच्चारण करना चाहिए और स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अकेले हम ऐसा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते भगवान की कृपा मदद के बिना, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए बहुत नम्रता के साथ। 13 और 14 श्लोक में बता रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा के सागर हैं, मेरा हृदय आपसे भिक्षा मांगता है। अगर मैं नम्रता से और ध्यान से प्रार्थना नहीं करता हूं आपकी कृपा के लिए, तो मेरा जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं। जो अपनी शक्ति, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पर भक्ति करना चाहते हैं, उनको पता चलेगा कि उनके सब प्रयास विफल रहेंगे। भगवान कृष्ण की कृपा हर कार्य में सफलता का मुख्य कारण है। जो भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो बहुत ही निम्न आत्मा है। 15वां श्लोक। थोड़े पहले हमने चर्चा किया ध्यान पूर्वक हरिनाम लेना। चैतन्य महाप्रभु का इस संदर्भ में चैतन्य भागवत मध्य लीला 23.650 में बताया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। अभी आप जाओ और जप ध्यान करो और हरि नाम जो है उसको निर्बंध, संख्या पूर्वक निर्बंध करो। आपको हरि नाम से सभी सिद्धि प्राप्त होगी। नित्य हरि नाम लो और कोई नीति नियम उसको रोक नहीं सकता है। निर्बंध को समझाने की जरूरत है। साधक को महामंत्र तुलसी माला पे जप करना चाहिए। जप माला में 108 मोती होते हैं। 4 माला को एक ग्रंथि कहते हैं। 4 माला हम करते हैं उसको एक ग्रंथि कहते हैं। धीरे धीरे हम को 16 ग्रंथि करना चाहिए, माने 64 माला। तो सबसे पहले तो हमें 16 माला करना चाहिए, माने 4 ग्रंथि। फिर धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ा के हम 5 ग्रंथि, 6 ग्रंथि, 7 ग्रंथि, 8 ग्रंथि, 10 ग्रंथि, 12 ग्रंथि, अपने अवस्था को देखकर 16 ग्रंथि तक जाना। ठीक है। ये 66 माला एक आसन एक शॉट में करने को निर्बंध कहते हैं। और अगर चैंटिंग को और भी बढ़ाया जाए 3 लाख नाम तक, तो भक्त हमेशा नाम अमृत में मग्न रहेगा। सारे पूर्व आचार्य और महाजन ने ये महाप्रभु की शिक्षा का पालन किया है और सिद्धि प्राप्त की है। अभी भी जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो इस प्रकार से कर सकता है। मुक्त आत्मा और भौतिकवादी सभी हरिनाम ले सकते हैं। मुक्त आत्माओं में जो मूड रहता है चैंटिंग का वो अलग है, लेकिन नाम का अमृत सभी आस्वादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जप करना चाहिए। और लास्ट में ये हरिनाम चिंतामणि जो है उसका महात्म्य बताते हैं हरिदास ठाकुर। जो व्यक्ति हरिनाम चिंतामणि रूपी रत्न को मुकुट मणि के रूप में रखता है अपने सिर पे, उसको श्रीला हरिदास ठाकुर के चरणों में आश्रय मिले। तो ये सिस्टम कैसा है, ग्रंथि का सिस्टम। जैसे बॉक्सिंग होता है ना, तो बॉक्सिंग में राउंड होता है, राउंड 1, वो 2 मुकाबले करते हैं। फिर जब राउंड खत्म होता है तो घंटी बजती है। फिर वो दोनों जाके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और उसका ट्रेनर थोड़ा पानी पिलाता है, थोड़ा पाटा पुट्टी खून बून निकला है तो ऐसा क्रीम लगाता है और कहता है कम ऑन जानी, यू कैन डू इट, गो ऑन, बीट हिम अप, उत्साह देते हैं। फिर वो वापस जाता है दूसरा राउंड में, इसे जाता है। ऐसे एक एक राउंड में उत्साह होना चाहिए। ऐसे महाप्रभु बोलते हैं कि हर ग्रंथि को उत्साह से करना चाहिए।
हमारा क्या होता है, शुरुआत में उत्साह होता है, फिर थोड़े समय के बाद उत्साह भस्म होता है, ऐसा नहीं। तो बीच में आप थोड़ा सा जो करना चाहे वो कर सकते हैं। 4 माला के बाद 4 माला उत्साह से करो, फिर थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा अपने आप को कम ऑन जॉनी कर सकते हो, या थोड़ा सा हरिनाम चिंतामणि का एक श्लोक पढ़ लिया है कि नहीं, अपने आप को उत्साही कर लिया। थोड़ा जकड़ गया है तो ऐसे ऐसे कर लो, हाथ को सब फ्री कर लो बढ़िया से, ऐसे ऐसे, फिर माला करो ऐसे। फिर धीरे धीरे 8 माला ऐसे एक शॉट में करो, फिर धीरे धीरे 12 माला एक शॉट में करो, फिर धीरे धीरे पूरा 16 माला एक शॉट में करो। इस प्रकार से ग्रंथि सिस्टम को निर्बंध जो बताया है 12वां अध्याय 15वां श्लोक में, ये प्रणाली बताया है, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अब लास्ट आइटम जो आपके लिए है, अच्छा रेवती रमन प्रभु इसको स्क्रीन पे डाल दो, प्रेयर्स को। हाँ सुधांशु, स्क्रीन शेयर करो प्रेयर का। सुधांशु, थोड़ा सा ब्रॉड करो, ब्रॉड। हाँ बड़ा दिखना चाहिए थोड़ा। हाँ विड्थ बड़ा उसकी, हाँ हाँ, और थोड़ा बड़ा बड़ा, आप कम कर रहे हैं। हाँ यस यस, ठीक है। तो ये सब प्रार्थनाएं जो है हम सब साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप सब साथ में पढ़िए। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, मौली रत्नमाला, द्युति निरजित पाद पंकज, मुक्त कुले रूपस्य मुक्त कुले परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम, आपके पाद पंकजों की अंगुलियों के अग्रभाग सदैव वेद शिरोमणि उपनिषदों रूपी रत्नमाला से उदित द्वारा पूजे जाते हैं। नारद एवं सुखदेव जैसे मुक्त जीव निरंतर आपकी आराधना करते हैं। हे हरिनाम, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। फिर दूसरा श्लोक, ठीक है। निवृत तरसेर उपगीयमानात् भवसालच्योत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विनोपशुगनात्। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्धजीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव एक कसाई, पशुघाती अथवा स्वयं को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को कौन नहीं सुनना चाहेगा। तो ये जो पूरा प्रेयर्स है, आप सब लोग प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको आपको हर रोज पढ़ना है, ठीक है ना। फिर रेवती रमन प्रभु, रेवती रमन प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु जी। आप पढ़िए नरसिंहदेव प्रेम प्रदाता। कृष्णा, हाँ आप पढ़िए, ये प्रार्थना को पढ़िए आप। हृदय से अनर्थ और अपराधों को हटाने के लिए भगवान नरसिंहदेव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। सर्व मंगलकारी और करुणामय भगवान नरसिंहदेव के पास हृदय को शुद्ध करने की
विघ्नों के विनाश की तथा भगवान के नाम में रुचि स्थापित करने की असीमित शक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नरसिंह देव की दया और राधा गोविंद प्रेम के बीच के रिश्ते को दिखाया। नवदीप धाम में नरसिंहपुरी देवपल्ली के नाम से जाना जाने वाला भगवान ये मेरा स्क्रीन में जाने जाने वाला भगवान नरसिंह के धाम में मैं भूमि पर प्रेम से लौटकर कृष्ण प्रेम की भीख मांगूंगा। मेरे हृदय में कपट, निष्ठुरता और प्रतिष्ठा की चाह और 6 शत्रु लालसा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भ्रम और मूर्खता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य मत वास करते हैं। इसीलिए मैं भगवान नरसिंह के चरणों में प्रार्थना करूंगा, मेरे दिल को शुद्ध करे, मुझे कृष्ण की सेवा करने की इच्छा प्रदान करे। रोते हुए मैं नरसिंह के चरण कमलों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं नवदीप में राधा गोविंद की पूजा कर सकता हूँ, जो सभी बाधाओं से मुक्त हो। कब वो भगवान हरि जो भयभीत मनुष्य के भय पर प्रहार करते हैं कृपा करेंगे और मुझ पर दया करेंगे। यद्यपि भगवान का ये रूप बुराई के लिए भयानक है और प्रहलाद की अध्यक्षता में भक्तों के लिए बहुत शुभ है। कब नरसिंह देव कृपा करके मुझे प्रसन्न हो जाएंगे, जो एक बेकार मूर्ख है, और मेरी आशंका को दूर करेंगे। भगवान नरसिंह कहेंगे, प्रिय पुत्र, गौर धाम में खुशी से यहाँ रहो, राधा गोविंद की पूजा करो और पवित्र नाम के लिए आकर्षण का विकास करो। मेरे भक्तों की दया से सभी बाधाओं को पार किया जाएगा। शुद्ध हृदय के साथ ही राधा गोविंद की पूजा करें, जहां मीठा अमृत वास करता है। इस तरह से बोलने के बाद कब भगवान नरसिंह मेरे शीश पर अपने पैरों को रखेंगे। फिलहाल भगवान की दया से मैं राधा गोविंद के लिए उत्साहित प्रेम के लक्षण प्रदर्शित करूंगा और अपने मंदिर के द्वार के सामने जमीन पर लौट लूंगा। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर के मस्तक पे नरसिंह भगवान नरसिंहपली की मूर्ति से बाहर निकल के उनके मस्तक पे चरण रखे हुए। आप जब भी मायापुर में जाओ तो इसका आपको लाभ मिलेगा। फिर नेक्स्ट प्रार्थना पढ़िए प्रभु जी, हरिदास ठाकुर का। हाँ, सुधांशु नहीं, हरिदास ठाकुर का है ना ये, और हरिदास ठाकुर की। हाँ ये नहीं वैष्णव, वही वैष्णव वंदना ना। बस ये हाँ, हरिदास ठाकुर। हाँ, कृपा करी नाम रूपेर अमार जीवाय, निरंतर नाच प्रभु तरी तव पाय, रख इन लवतन तव इच्छा मत, यहाँ रख देह मोरे कृष्ण नामामृत, जगत जन्य नाम दीते तव अवतार, जगत जन्य माझे मोरे कर अंगीकार, आम्ही तो अधम तुम्ही अधम तारण, उभय संबंध येई पतित पावन, अच्छेद संबंध येई तोमार अमाया, यार भले नाम अमृत ये अधम छाया। ऊपर करो, ट्रांसलेशन सुधांशु। हरे कृष्णा, सुधांशु ऊपर करो। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। हे भगवान, मुझ पर दया करे और मेरी जिह्वा पर अपने दिव्य नाम के रूप में अवतरित हो, वहां सतत नृत्य करे। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में गिरकर भीख मांगता हूँ, आप मुझे आपकी प्रसन्नता के लिए इस जगत में रखे या अपने धाम ले जाए, परंतु चाहे जो भी आप करें, कृपया मुझे हमेशा आपके दिव्य नामों का अमृत पान दें। आप इस जगत में अपने दिव्य नाम का वितरण करने आए हैं, तो कृपया मुझे भी अपनी कृपा पात्रों में शामिल करें। मैं तो सबसे पतित हूँ और आप तो सबसे ज्यादा पतितों के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारा शाश्वत संबंध है। हे पतितों के उद्धारकर्ता, इस अटूट संबंध के नाते हे भगवान, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मुझ पर दिव्य नाम अमृत की वर्षा करें। हरिनाम चिंतामणि 11:53-56। नेक्स्ट प्रार्थना छोटा वाला है। नेक्स्ट नहीं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम। हाँ, अनिशा, लास्ट वाली। हाँ, नीचे हाँ, ये हरिदास ठाकुर के बाद ही था। हरिदास ठाकुर के बाद है ना। हाँ, ये 10 नाम अपराध नहीं, ये नहीं, इसके पहले नहीं, ये इसके पहले पेज 1 पेज 2 बस हाँ, ये अपराध। हाँ, बस को बड़ा करो। अपराध सहस्राणि, ऊपर करो। अपराध सहस्राणि क्रियेर अंतिर अहर्निशा मया, दासोयम इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। दिन रात में सहस्र अपराध करता हूँ,
हे मधुसूदन, मुझे अपना दास समझकर कृपया क्षमा कर दो। अभी वैष्णव शरण, श्री वैष्णव शरण, नहीं वैष्णव शरण, शरण, हाँ नहीं ये नहीं, श्री वैष्णव शरण। आगे आगे आगे, नहीं ये नहीं, और आगे जाओ। वैष्णव शरण एक लंबी प्रार्थना है, देवकी नंदन दास श्लोकों के अनुसार। हाँ, वृंदावनवासी जट ऐसी है, लेकिन आगे सुधांशु प्रभु तीसरा नंबर का पेज जो खुला था हरदास ठाकुर के नरसिंह भगवान के बाद में, ऐसे ही श्लोकों के बीच में, और हाँ बस बस इसको बड़ी करो। वृंदावन देवकीनंदन दास ठाकुर द्वारा वैष्णव में समर्पण। वृंदावन वासी जात वैष्णव गण, प्रथमे वंदना कोरी साभार चरण, नीलाचल वासी यत महाप्रभुर्गण, भूमि ते पड़िया वंदो साभार चरण, नवदीप वासी यत महाप्रभुर भक्त यात घोड़ देश स्थिति, साभार चरण वंदो करिया प्रणीति, ये देशे वैसे गुरांगेर गण, ऊर्ध्व बाहु करी वंदो साभार चरण, होई आचन हई बेन प्रभुर यत दास, सभार चरण वंदो दंते करी घास, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, यही वेद पुराण गुण गाये बाशुने, महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लई शरण, वंदना करीते मुई कट शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे दुई मुई दंभ मात्र करी, तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष क्षमी वो अधमे करी निज दास, सर्ववांचा सिद्धि है यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ होया प्रेम धन लूटे, मनेर वासना पूर्ण आचारिते हय, देवकी नंदन दास यही लोभे कर। इसका ट्रांसलेशन भी है ना। हाँ। सबसे पहले मैं वृंदावन में रहने वाले सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम अर्पण करता हूँ। धरती पर गिरते हुए मैं जगन्नाथपुरी में रहने वाले महाप्रभु के सभी अनुयायियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गहन प्रेम में आसक्ति से मैं महाप्रभु के उन सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो नियोजित में रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ और महाप्रभु के उन सभी अनुयायियों के चरणों का आदर करता हूँ जो बंगाल के किसी भी हिस्से में रहते हैं। हाथों को उठाने के साथ में गौरांग के सभी अनुयायियों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ जिस भी देश में वे रहते हैं। अपने दांत के बीच एक तिनके साथ में महाप्रभु के सभी सेवकों के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ भी होंगे। हर किसी ने वेदों और पुराणों को वैष्णव की महिमा गाते हुए सुना है, जिनमें से प्रत्येक को पूरे ब्रह्मांडों को बचाने की शक्ति है, क्योंकि महाप्रभु के सभी भक्त गिरी हुई आत्माओं के उद्धार करता है। मैं सभी से उनके चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ, भले ही मैं सबसे अधिक व्यक्ति हूँ। वैष्णव की महिमा गान करने के लिए मेरे पास क्या शक्ति है? मेरा ऐसा करना केवल मेरे अहंकार का प्रदर्शन, मेरे अज्ञान मन का एक परिणाम है। फिर कहूंगा, यह गूंगा गिरा हुआ व्यक्ति खुद को भाग्यशाली मानता है और मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करे। जो लोग वैष्णव का आश्रय लेते हैं वे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और आसानी से यमराज की सजा से बचते हैं। तब वे भगवान के प्यार के खजाने को लूट सकते हैं जो भौतिक दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे भक्तों की सभी इच्छाओं को शीघ्र से पूरा किया जाता है। उनकी करुणा के लिए लोभी देवनंदास वैष्णव की महिमा करते हैं। ठीक है, अभी अगली प्रार्थना जो है वो, हाँ ये इसको एक ही बार पढ़ना है, लेकिन हर रोज जब आप जप करेंगे तो ये 10 बार उच्चारण करना है, ठीक है ना। लेकिन आज आपको खाली एक ही बार पढ़ लो। ओके, एवरी डे आपको 10 बार इसको पढ़ना है। क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए शायद, तो आप ही पढ़ दीजिए प्रभु जी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ,
इच्छाए गोसाइर कोरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ये षड गोस्वामी जो है, श्री रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, रघुनाथ दास और गोपाल भट्ट की अहेतु की कृपा से भक्ति की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। राधा गोविंद युगल की सेवा प्राप्त की जा सकती है और सेवाओं के लिए सभी व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी की जा सकती है। फिर दूसरी प्रार्थना जो है उसको भी 10 बार करना है। 10 अपराधीन हृदय न पसे, कृपा करो महाप्रभु माजी नाम रसे। तो ये जैसा हमारा हाथ होता है ना, उसमें हम 10 बार गिन सकते हैं। जैसे जो ब्राह्मण दीक्षित है वो गायत्री गिनते हैं, नहीं तो ऐसे गिन सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बार गिनती हो गया ये प्रार्थना। हे महाप्रभु कृपया मुझ पर दया करे ताकि 10 अपराध मेरे हृदय को कभी स्पर्श न करे और मैं हमेशा पवित्र नाम के रस में अवशोषित रह सकूं। नेक्स्ट, ये जो प्रार्थना है नेक्स्ट, वो 11 बार उच्चारण करना है। माने 10 बार तो हाथ पे हो जाएगा, फिर 11 बार हाथ जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है। अनंत कोटि वैष्णव जन, अनंत कोटि भक्त जन, अनंत कोटि रसिक जन तथा अनंत कोटि मेरे गुरुजन, मैं जन जन से आपके चरणों की धूलकन, मुझको ले लो अपनी शरण, मेरे मन की हटा दो भटकन, लगा दो मुझको कृष्ण चरण, लगा दो मुझको गौर चरण। यदि अपराध मुझसे बन गए आपके चरणारविंद में, जाने में या अनजाने में, किसी जन्म में या इसी जन्म में, क्षमा करो मेरे गुरुजन, मैं हूँ आपकी चरण शरण, पापी हूँ, अपराधी हूँ, खोटा हूँ या खरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तो आपका हूँ, मेरी ओर निहारो कृपा दृष्टि विस्तारो, हे मेरे प्राण धन निभा लो अब तो अपनापन, मैं हूँ आपके चरण शरण, हे मेरे जन जन के गुरुजन। तो ये आपको 11 बार पढ़ना है। हे असंख्य भक्त साधित जीव आध्यात्मिक गुरु, मैं हर जन्म में आपके चरण कमलों की धूलकण हूँ। कृपया मुझे शरण दीजिए, मेरी भटकते हुए बुद्धि को रोक दे। कृपया मुझे भगवान कृष्ण और गौर के चरण कमलों में अनुलग्न कर दे। यदि मैंने आपके चरण कमलों में जानबूझकर या अनजाने में इस जीवन काल में या किसी अन्य जीवन काल में कोई अपराध किए हैं तो आध्यात्मिक गुरु कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आश्रय के अधीन हूँ, मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसे भी हूँ मैं आपका हूँ, मैं अभी आपका हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाले। हे मेरे प्राण धन, मेरे आध्यात्मिक गुरु, हर जन्म जन्म में कृपया मुझे आपसे संबंधित भावनाओं को बनाए रखने की अनुमति दे। मैंने आपके चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है।